And we welcome you once again. And we have privilege that we have very good, the guide and person like Gupta sir. He always give us the directions कि आलोक तुम ये ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, इस तरह से अच्छा होगा, आपने ये अच्छा किया. कोई appreciate करने वाला भी हो तो that becomes your work very easy. So I always say and I always pray to the God and I always acknowledge this compliments कि हमारे पास मनोविकास फैमिली में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, they are very much well qualified, well experienced, and they have the good ideas. And one very great thing is that each and every one they are very much apprehensive, they are very much active, they are very much dynamic. How the people with especially the people with intellectual and developmental disabilities can be rehabilitated. We can see them into the mainstream society. So this is the core goal of the Manovikas, and we welcome all our participants and everyone. And let me share you how this idea came into our mind. During maybe during Mashwara, हम लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे, बहुत सारी चर्चाएं कर रहे थे, और डॉक्टर देसाई सर, स्तुति मैम, और हम लोगों ने 2-3 बार इस तरह के टॉपिक को होल्ड भी किया on the sexuality and the sexual education and other things. So and that is the one part, that Mashwara is one part from where we pull this topic, and the another part is since my whatever the I think maybe last 25 years of experience, what I have seen a lot many changes in the sector of persons with intellectual and developmental disabilities. जहां हम पहले अगर 90s के बारे में बात करें तो वो स्कूल भी नहीं जाते थे, उसके लिए कोई जॉब के बारे में बात नहीं थी. बट टुडे आई कैन सी द पिक्चर हैज चेंज्ड and it is up to the large extent it is changing. The persons with intellectual and developmental disabilities live their entire life in the community, and I think they are also included, and they have the rights to go to the school, go to the college, go to the workplace, and recreational activities and other things. So as the society evolved, and it has evolved, and we have also come to the recognition of the persons with intellectual and developmental disabilities should be able to make their decision. So decision to the great extent to their ability, and freedom to make the decision. This is one thing, the making the decision, giving opportunity to make the decision, and also giving the freedom how they can make their decision, and decision towards their human rights or fundamental or personal autonomy or self determination. As Dr. Desai sir said, there are so many components are there. तो हम लोग इस सब चीजों को देखते हुए then we thought of this topic, and this topic which I have seen, but still maybe within the family, within the community where the persons with intellectual and developmental disabilities are living, they are still accepted as a maybe it is a stereotype thinking or typical thinking about their sexuality, that they are a asexual person, उसमें सेक्स की कोई भावना नहीं होती है, वो लोग कोई बच्चे ही होते हैं हमेशा. अगर वो कोई एडल्ट भी हो जाए, पर्सन विद इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज, अगर वो 18 साल से ऊपर भी हो जाए, फिर भी हम कहते हैं ये बच्चे हैं. सो इस तरह की जो बातें हैं, और हम सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हैं कि वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं, उसका ह्यूमन एक्सपीरियंस नहीं है, तो मे बी उसका जो एक फंडामेंटल राइट्स का एक्सप्रेशन है या एक सेक्सुअल एक्सप्रेशन है, वो कहीं ना कहीं मैं फाइंड आउट कर रहा था कि वो मिसिंग है. और जब हम इस टॉपिक के बारे में बातचीत कर रहे थे, जब हम लोग इस टॉपिक के बारे में रिसर्च कर रहे थे, तो वी वर फाइंडिंग दैट maybe few international organizations like ARC and
AAIDD, American Association on Intellectual and Developmental Disabilities, they have some statement or they have some kind of definition on the sexual rights of the persons with intellectual and developmental disabilities. But if I go through that, the acts of Indian acts like the RPD Act and National Trust Act, वहां पर कोई बहुत ऐसी बात नहीं कही गई है. वहां पर कही गई है कि प्रोवाइडिंग द सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर टू द पीपल विद डिसेबिलिटी, एंड वहां पर भी स्पेशली वुमेन विद डिसेबिलिटी को काउंट किया गया है. मे बी इन द एक्ट इटसेल्फ इट इज लैकिंग कि हम मेल को जो है कि वो हम उसको लगता है कि सेक्सुअल एक्टिविटीज से बाहर कर रहे हैं, या उसकी सेक्सुअलिटी से हम बाहर कर रहे हैं, या फिर उसके सेक्सुअल राइट से बाहर कर रहे हैं. तो कहीं ना कहीं एक अपने एक्ट में भी हमने देखा कि कहीं गैप है. एंड इवन इन द यूएनसीआरपीडी there are the something it is written on the sexual exploitation, जो सर बात कर रहे थे कि disabled child or women, they have the lot of problem in their life, maybe the atrocity and maybe so many kind of I have seen the abuses in their life. And even the National Trust Act जो हमारे इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए बातचीत करता है, वहां पर भी अगर हम देखें कि सिर्फ एक जगह एक लाइन लिखी गई है उस एक्ट में कि जहां पर अगर कोई निग्लेक्ट सिचुएशन हो टुवर्ड्स द पीपल विद डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, मे बी सम मिसबिहेव और बाय द गार्डियन और द कम्युनिटी, only the local level committee can constitute a committee to take care of this violation or this kind of abuse. तो वहां पर भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हम सेक्सुअल सेल्फ एडवोकेसी के बारे में बातचीत नहीं देख रहे. और मैं एक जब पूरे इसको रिसर्च कर रहा था तो उसमें हमने पाया कि जो WHO है, और एक मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक और चीज कोट करना चाहूंगा. We have the good by the Ministry of Health and Family Welfare, by the Government of India, Department of Health and Family Welfare, by the Hospital Division. They had indicated and they had written it very clearly that the persons with disability should be the sexual history of the persons with disability should be taken. Maybe any violence or anything is there. So earlier it was somewhere if somebody was abused, like the people with disability when they got abused or some sexual violence has happened, so पूरे लगता है कि हेल्थ में भी, मेडिकल केयर में भी उसकी केस हिस्ट्री पूरी तरह से नहीं ली जाती, उसको बस ऐसे ही छोड़ दिया जाता था. लेकिन रिसेंटली वी हैव सीन कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का एक गाइडलाइन है, उसमें ये कहा गया कि उसका जो है हम पर्सन्स विद डिसेबिलिटी से उसके सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बातचीत करेंगे. उसके अगर कोई उसका अब्यूज हुआ है या कोई वायलेंस हुआ है या कोई भी उसको नीड है, तो वी कैन आस्क डायरेक्टली टू द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी. एंड वहां पर एक और बात कही गई है कि हम डायरेक्ट पर्सन्स विद डिसेबिलिटी से इसीलिए बात करेंगे कि हो सकता है कि उस व्यक्ति का जो अब्यूज है वो उसके नियर और डियर मे बी द फैमिली मेंबर के द्वारा हुआ हो. इसीलिए हो सकता है कि जो केयर टेकर है या जो पर्सन accompanying this survivor with the disability, तो वो हो सकता है कि उस बात को छिपा ले, तो इसीलिए डायरेक्ट पर्सन्स विद डिसेबिलिटी से पूछी जाए. सो दिस इज वन ग्रेट थिंग व्हिच आई कैन से कि हमारे हेल्थ सेक्टर में एक बहुत बड़ा एक सुधार अगर हम देखें कि डायरेक्ट हम पर्सन्स विद डिसेबिलिटी से बात करें, उसको इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन और इंडिपेंडेंट उससे केस हिस्ट्री लेने की बात कही गई है. तो ये एक चीज मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि पूरे इस रिसर्च में, इस पूरे वर्कशॉप के रिसर्च में कि हमारे पास सरकारी जो कोई चीज है तो वो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ का एक ये गाइडलाइन है. और अगर हम WHO के बारे में बात करें तो यस, they had a good thing. They had the, I can say, they had the central aspect of being human throughout the life. They had encompasses the sex, gender identity, their roles, the sexual orientation, बड़े तरह के intimacy, reproductions, ये बड़े बहुत सारे और भी कंपोनेंट्स जोड़े गए हैं
to understand the sexuality and sexual self advocacy of any individual. सिर्फ हम उसकी जेंडर आइडेंटिटीज पे ही बात नहीं कर रहे हैं, उसके रोल पे बात कर रहे हैं, उसके सेक्सुअल ओरिएंटेशंस के बारे में बात कर रहे हैं कि वो उसका क्या लेस्बियन है, गे है, ट्रांसजेंडर है, उसके प्लेजर्स के बारे में बात कर रहे हैं, उसके इंटीमेसीज के बारे में बात कर रहे हैं, इवन उसके रिप्रोडक्टिव राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं. Even we have also seen in the WHO's the preambles, the WHO's guideline, कि उसमें जो एक बात कही गई है कि sexuality is the experienced and expressed thoughts. maybe कोई भी हम जो अपने जीवन में जो भी उसके बारे में, अपने लाइफ के बारे में जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या हम अपने थॉट्स को अपने जीवन से जोड़ के कैसे एक्सप्रेशंस कर रहे हैं, हमारे लाइफ का जो बायोलॉजिकल या सोशल या इकोनॉमिक या पॉलिटिकल कल्चरल जो भी कुछ है, वो जो भी फैक्टर्स है, वो सभी फैक्टर्स सेक्सुअलिटी और सेक्सुअल हेल्थ को बड़े अच्छे से डिटरमाइन करता है. ये एक बात कही गई है. तो अगर हम देखें तो ये पूरे 3 दिन हम लोग सिर्फ सेक्स एजुकेशन या जेंडर इक्विटी और जेंडर इक्वालिटीज या बायोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेक्स, इसके बारे में बात नहीं कर रहे. हम लोग इस 3 दिन में एक अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं कि जो मनोविकास करता भी आया है बहुत समय से, और हम लोग बात कर रहे हैं कि जो स्टिग्मा है या फियर है या वायलेंस है, वो ये सारा रियल थ्रेट्स है. एक स्टीरियोटाइप थिंकिंग अबाउट द पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज है सोसाइटी में या पेरेंट्स के साथ. तो ये सब कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बड़ा सा हाईलाइट पॉइंट है, जहां पर हम देखते हैं कि बहुत सारे पीपल विद इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज दे आर इग्नोर्ड. तो ये जो डेंजर साइन है, इसको हम लोग बहुत पहले, आई रिमेम्बर इन 2001 और 2 वी हैड द first sexuality components and highlighting the sexuality of the persons with intellectual and developmental disabilities in 2000 in Manovikas. And वहां पर हमने देखा कि we must have to commit towards this cause. हम लोगों को committed होना होगा. हम लोगों को committed, if I am talking about the commitment means we should have the proper कहीं ना कहीं एक सकारात्मक दृष्टिकोण के बारे में, कि जो हम इस लक्ष्य को अगर पूरा करना चाहेंगे तो हमारी जो प्रतिबद्धता है, हमारा जो कमिटमेंट है, इट शुड हैव द पॉजिटिव विजन टुवर्ड्स इट. And somewhere I have seen that one more thing when we had started this topic and working since 2000, so we have seen कहीं ना कहीं हम लोग एक सेक्सुअल राइट्स के बारे में बात नहीं करते पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज के केस में. इवन की ह्यूमन राइट्स भी कम ही बात होती है, लेकिन अगर हम उसके सेक्सुअल राइट्स के बारे में बात करें, अगर हम उसके प्रोविजंस के बारे में बात करें, या फिर वी कैन prepare them to advocate themselves about the sexual rights or the human rights, so that will be the in the wider public sphere वो बहुत ही एक गहरा इम्पैक्ट लाएगा. और इसमें हम लोगों ने 2000 से 20 साल में हमने ये देखा कि कुछ हम लोगों ने सेल्फ एडवोकेट्स तैयार किए, और उसमें बहुत सारे चीज हम लोगों को सीखने के लिए मिला, और वो सारे कंपोनेंट्स हम लोग 3 दिन में रखेंगे. कि दिस इज नॉट द वर्कशॉप व्हिच इज द पेपर्ड और बुकिश वर्कशॉप. वी हैड डन द वेल रिसर्च एंड वी हैव डन द लॉट मेनी एक्सरसाइजेस अपॉन दिस, bringing you all 3 days how we can think about this topic. And we as a Manovikas, we are also the state nodal agency center of the National Trust. तो हमारी एक कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हम बात कर रहे हैं कि कोई भी, कि हम इस तरह के लोगों के लिए, पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज के लिए, पेरेंट्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए बहुत सारे ट्रेनिंग और वर्कशॉप्स प्रोवाइड करें, सो दैट द पॉजिटिव एटीट्यूड कैन बी चेंज. So this exercise, that this 3 days workshop is one of the part of our we can say this is the commitment that we should talk about the sexuality, we should think about the sexuality, we should have a kind of thinking about the sexual rights of people with disability.
तो जब भी हम एक मे बी हम ह्यूमन राइट्स, कभी कभी लोग कहते हैं कि अगर आप तो मनोविकास वाले बात करते हैं कि पर्सन विद डिसेबिलिटी शुड गो इनटू द कॉलेज एंड दे शुड हैव द हायर एजुकेशन, बट कहीं ना कहीं उसका स्कूल एजुकेशन ही पूरा नहीं होता है। तो हम लोग वेट नहीं कर सकते कि हम स्कूल एजुकेशन पूरा करें तब जाकर हम हायर एजुकेशन के बारे में बात करें। अगर हम साइमल्टेनियसली अगर हम बात करेंगे तो जैसे ही वो व्यक्ति स्कूल एजुकेशन को खत्म करेगा तो उसको हायर एजुकेशन मिलने में आसानी होगी। इसी तरीके से सेम थिंग व्हिच वी आर थिंकिंग अबाउट, लेट अस टॉक अबाउट द सेक्सुअल राइट्स। जब हम सेक्सुअल राइट्स के बारे में बात करेंगे तो वहां पर ह्यूमन राइट्स भी इंक्लूड होगा, और ह्यूमन राइट्स को हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स को भी हम सिखाना चाह रहे हैं। तो जब भी एक अगर हम बात करें कि हमारे जो भी पीआईडीडी वाले लोग हैं, पर्सन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वाले जो लोग हैं, सबसे जो एक पूरी सोसाइटी में हम लोग देखते हैं कि हम लोग उसका आकलन करना चाहते हैं, हम उसके बारे में जजमेंटल होना चाहते हैं। तो मैं यही एक बात कहना चाहूंगा कि अगर हम सेक्सुअल राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें उसको आंकना नहीं चाहिए कि वो जो दिव्यांगजन है, वो पर्सन विद आईडीडी है, कैसे रहता है, वो स्वयं अकेले रहना चाहता है या किसी के साथ रहना चाहता है, या वो लिव इन रिलेशन में रहना चाहता है या कहीं और रहना चाहता है। तो उसके बारे में अगर हम बातचीत कर रहे हैं तो ये एक जजमेंटल होकर नहीं बातचीत करें, एक खुले विचार से बातचीत करें। तो हमारा जो हम लोग मनोविकास में जो ये सेक्सुअल राइट्स के बारे में जैसे ही हम लोगों ने सोचा तो यहाँ पर हम उसके पसंद के बारे में बात की कि वो उसकी जो पसंद है उसको वो बनाने के लिए आना चाहिए और उसका डिसीजन लेने के लिए आना चाहिए। एंड जो दूसरी बात थी कि दिव्यांगजन को किसी से सवाल पूछने पर या सेक्स संबंधित या वो अपनी सेफ्टी के बारे में या अपने हेल्थ के बारे में उसको जानने का अधिकार। They must know about their sexual rights. They must know about what is going inside, what kind of sexual activities is going on. They have the right to ask the questions, to know about the sex related safety and their health. So this is what the second point which we have thought about in 20 years of experience कि इस तरह के जब भी हम बातचीत कर रहे हैं, जब भी हम लोग पीआईडीडीज के बारे में, पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक ये भी चीज बहुत जरूरी है। और जो तीसरा मुद्दा हमारे मन में आया था इसमें कि जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है, इंक्लूडिंग द पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, कैन टॉक अबाउट देयर रिलेशनशिप एंड चूज अ पार्टनर। दे हैव द राइट्स टू मेक अ चॉइस अबाउट हु दे वांट टू बी विद, किसके साथ वो रहना चाहता है, कैसे उसका पार्टनर हो। हम शादी के बारे में सोचते ही नहीं है, हम कभी उसके रिलेशनशिप के बारे में सोचते नहीं है, कभी हम उसके सोशल डेवलपमेंट का एक जो मेजर एस्पेक्ट्स है वो कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। तो वो भी चीज हम लोगों ने सोचा कि सेक्सुअल राइट्स में ये जो रिलेशनशिप का जो कंपोनेंट्स है, पार्टनर चूज करने का जो कंपोनेंट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसके बारे में भी एडवोकेसी करें, इसके बारे में भी हम एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू रखें, ट्रेनिंग रखें, तो दैट विल बी वन बेटर थिंग व्हिच वी कैन थिंक अबाउट इट। एंड द लास्ट टू पॉइंट व्हिच आई वुड लाइक टू टेल यू हियर, व्हाट वी कैन try to find out in these 3 days, that is the common people should respect the privacy and the rights of persons with intellectual and developmental disability. This is they treat everyone well. So what we are finding around the society, around the community, हम अभी भी एक धकियानिसुई सोच या हम कहें कि एक थोड़े से ऐसे विचार को लेकर जाते हैं कि अरे उसका तो कोई अपनी कोई प्राइवेसी नहीं होगी, चलो उसके बारे में मजाक कर लेते हैं। अच्छा वो एडल्ट भी हो गया तो वो नंगा घूम रहा है तो कोई बात नहीं है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं हम अगर आम लोगों को उनके दिव्यांगजन की जो निजता है, उसकी जो प्राइवेसी है या उसके अधिकार का सम्मान करना चाहिए, इस बात को अगर हम सोसाइटी तक पहुंचा पाए, इस बात को अगर हम कम्युनिटी तक पहुंचा पाए कि हर किसी को हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ये जो एक कंपोनेंट्स है, ये भी एक सेक्सुअल सेल्फ एडवोकेसी का एक बहुत अच्छा पार्ट है। और जो लास्ट मैं बात कर रहा हूँ, ये
अकेले नहीं हो सकता है, अकेले पेरेंट्स से नहीं हो सकता, अकेले किसी इंस्टीट्यूशन से नहीं हो सकता, अकेले किसी से नहीं हो सकता। जो दिव्यांगजनों की सुरक्षित रहने का अधिकार है, जैसे अभी डॉक्टर देसाई सर ने भी कहा, जो उसके साथ गाली गलौज या उसके साथ जो भी अब्यूज है, जो भी हम चोट पहुंचाते हैं, या जब भी हम अपनी सोच के साथ जजमेंटल बन जाते हैं, तो वो चीज के प्रति हमें आवाज उठाने की जरूरत है। अगर हम बात करें कि जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है, दे हैव द राइट्स टू बी सेफ एंड शुड नॉट बी हर्ट, should not be judged by anyone or by abusing incidentally or by abusing knowingly। और हम कभी भी अगर हम किसी भी दिव्यांगजन को देख रहे हैं, खास करके इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वाले लोगों को देख रहे हैं, तो वॉइस विल बी रेज्ड। वहां पर अगर ऐसा कहीं भी कुछ हो रहा है, उसके प्रति हम अगर उसके सेफ्टी के प्रति या उसके सिक्योरिटी के प्रति अगर हमें कोई वॉइस रेज करनी हो, तो that we need। So in these components, I can say that components which we talk about, that they have the rights, they should have the rights to choose their life, to live where they want to live। They have the right to ask the question about their sexual related or sexual related safety and their health। And that person with disability, intellectual and developmental disability, can talk about the relationship, and they should have the, they should respected by the they should be respected their privacy, and they should have the rights to treat equally, with the equal opportunity and even with the equal dignity। It is very important, and then the safety is the very important। So we should not be judgmental, and we need to raise the voice when the any kind of safety is violated for the people with disability। So let us talk about what the sexual self advocacy for persons with IDD is। It is very important। Now I will say कि टॉपिक बहुत ही थोड़ा नया है हमारे इंडियन परिवेश के लिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात है कि हम लोग मे बी व्हाट आई हैव ऑब्जर्व कि we many people have to be come together and then have to talk about this topic। So let us understand कि हम जो sexual self advocacy के बारे में बात कर रहे हैं, it is somehow when we talk about the advocacy, it is somehow we link it with the ability to speak up or ability to make the one's point of view। It is very important for the self advocacy कि हम बोलें, अपना point of view रखें। Then self support or support for yourself, it means that you can ask what you want and tell everyone know about your thoughts and feelings। It is very important about the sexual self advocacy। So जब भी हम self advocacy के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये चीज हमारे दिमाग में पहले ही बहुत पहले आया कि स्वयं की वकालत करने के लिए तो हमें बोलने की बात है। अगर हम बोलेंगे नहीं, अगर वो क्षमता विकसित नहीं करेंगे, मे बी देयर इज वी हैव टू थिंक अबाउट द अल्टरनेटिव communication modalities। Maybe we have to be front of the people, maybe we have to back of the people, maybe we have to be with the people to speak up। अगर वो नहीं बोल सकता तो उसके साथ बोले, या वो बोल रहा है तो उसके पीछे रहें, उसको थोड़ा सपोर्ट करें, या वो उसके हम पहले बोलें या उसके साथ साथ बोले। ऐसी कोई क्षमता का हमें विकास करना चाहिए। और जहां पर हम सेल्फ सपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं या अपने लिए सपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो मांग सके, वो अपने राइट्स को बोल सके, वो अपने अधिकार को बोल सके, उसके साथ जो घटनाएं घट रही है उसके बारे में वो अपने विचार को, अपनी भावनाओं को बता सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड we tried that whatever we had the experience in मनोविकास, we tried to put it in all 3 days। हम लोग बातचीत करेंगे इसके बारे में भी कि वो कैसे कर सकते हैं। और जो सेक्सुअलिटी एंड डिसेबिलिटी है, अगर हम इसके बारे में देखें, तो जब भी हम सेक्सुअल सेल्फ एडवोकेसी के बारे में बात करते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है, उसके लिए हमें
एक अंतर्दृष्टि की बात कहें या हम कहें कि एक विजन होने की बात कहें, एक हमारे अंदर जो सेक्सुअलिटी सेक्सुअल सेल्फ एडवोकेसी के बारे में अगर कोई इनसाइट हो, तभी हम उसके बारे में कुछ आगे अपनी बात रख सकते हैं। एंड what are the basic components which we would like to take you in 3 days? We will talk about the make my choice, how they can make their choice. And this is one of the flagship program of Manovikas, Make My Choice. We have started in 2004, and we have the Namrata madam. She will talk about the how the choice reflect the own's life experiences, the values, कि कैसे वो अपने बारे में बातचीत कर सकता है, कैसे अपने छोटे-छोटे चॉइस से लेकर एक बड़े-बड़े चॉइस तक के बारे में बातचीत करना, कि वो बॉयफ्रेंड रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, या उसका जो सेक्सुअल राइट्स है उसके बारे में बातचीत करना, उसका अपने प्रति ट्रूथफुल होना, उसका भी चॉइस बनाने का एक अवसर मिलना. So this is the one component is very important which we have thought to include in these 3 days. And the another components like respect, it is somehow honor is the dignity for oneself. किसी को भी अगर आप रिस्पेक्ट के साथ बात करते हैं, उसके व्यूज को अगर हम इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग और लविंग वे में अगर हम एक्सेप्ट करते हैं, जो उसका वॉइस है, जो उसका रिस्पेक्ट है, जो उसका कंफर्ट है, उसको अगर हम रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो भी we need to do it. And maybe it is somehow we can say that trusting the people, once you trust to the people, then respect starts. So एक यहाँ पर ये भी बहुत important है. Then we have the very good expert here. Maybe I will join later on by today or by tomorrow, Dr. Sir T.D. Dharyal sir. He will talk about the rights. He has lot many work experience in this area, तो वो भी हम लोग बात करेंगे. Then we will also talk about the training and relationship and other thing. So in the I can say in complete thought process which I would like to tell you, this is something interdependence topic. इंटरडिपेंडेंस करने के मतलब है कि ये टॉपिक अकेले सिर्फ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी का सेल्फ एडवोकेट हो जाने से नहीं होगा, अकेले सिर्फ हम ट्रेनिंग ले लें, 3 दिन की ट्रेनिंग ले लें, इससे नहीं होगा. ये हम कहीं ना कहीं इसमें सेक्सुअल सेल्फ एडवोकेसी के लिए इंटायर एडवोकेसी मूवमेंट की जरूरत है. और इंटायर एडवोकेसी मूवमेंट के साथ अगर हम करते हैं, तो कहीं ना कहीं फैमिली को सपोर्ट करना है, फैमिली को इंक्लूड करना है, कम्युनिटी को इंक्लूड करना है, तो तभी हम इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं. और जब भी हम बात करें इसके बारे में, सेक्सुअल सेल्फ एडवोकेसी के बारे में, तो हम एक इंडिपेंडेंस के बारे में बात करें. इन द फाइनल नोट ऑफ माइंड that ultimately after all 3 days we can talk about the sexual self advocacy, and it implies to the interdependence means I need friends, I need help. मुझे दोस्त चाहिए और मुझे सपोर्ट चाहिए. I speak up and get support. मैं अपने आप बोलूं और मेरा सपोर्ट मिल जाए. Meet other people. हम अगर बात कर रहे हैं कि अगर हम 3 दिन में इतना इंडिपेंडेंट हो जाए, हम अपने पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वाले को अगर हम एक इंडिपेंडेंट करना चाहें, तो वो इतना हो जाए कि वो बताए कि हमें एक दोस्त की जरूरत है, हमें मदद करने की जरूरत है, मुझे बोलने की जरूरत है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, तो कोई मुझे सपोर्ट कर दे, मैं वो बात बोल पाऊं. ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है. दूसरे लोग से हम मिल पाए, समाज में हर कोई लोग हमें रिस्पेक्ट के साथ देखे, हम दोस्त बना लें, तो ये अगर हम कहीं ना कहीं एक ऐसा नेटवर्क बना लेते हैं, तो हम जो सेक्सुअल सेल्फ एडवोकेसी के बारे में बातचीत करें, वो एक बहुत ही अच्छा हम एक विचारधारा ला सकते हैं. और मैं लास्ट में कुछ 1-2 बात ऐसा करना चाहूंगा कि, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि हम लोग एडवोकेसी के बारे में तो बातचीत कर ही रहे, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग जो सेक्सुअल वायलेंस है या
सेक्स एजुकेशन रिलेटेड टॉपिक है, सर्विसेज है, वो कहीं ना कहीं हम अपने करिकुलम में शामिल नहीं कर पा रहे, जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर हम किसी व्यक्ति को कैसे सेफ रहा जाए, कैसे फीलिंग सेफ हो उसकी, कि कहीं भी वो अपने आप को सिक्योर्ड महसूस करे, वैसी ट्रेनिंग देना। हम अगर सेक्स एजुकेशन के बारे में कि कैसे वो कोई सेक्सुअल वायलेंस से बचे, कोई एसआईटी से बचे, सेक्सुअल इन्फेक्शन डिजीज से बचे, एचआईवी से बचे, इस तरह के बातों का कोई करिकुलम हमारे खास करके पर्सन विद इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज वाले उसमें नहीं है। तो ये एक बहुत ही समझदारी की बात है और हमें समझना चाहिए कि हम ये सब भी कंपोनेंट्स अपने एजुकेशन में डालें, ये सब भी हम अपने स्कूल एजुकेशन या क्लासरूम एजुकेशन में डालें। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो सेक्सुअल ओरिएंटेशंस के बारे में, खास करके हम अपने जो भी मेरा ये खास मनोविकास में मैं देखा हूँ कि रेसिडेंशियल केयर में भी, डे केयर में भी, कम्युनिटी केयर में भी, इवन की इंस्टीट्यूशनल केयर में भी, वहां पर बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल विद इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज हैं, उनको अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशंस का पता नहीं है। तो हम मेल, मे बी मेरा ओरिएंटेशन टुवर्ड्स द फीमेल है, मे बी somebody is having gay relationship, maybe having a transgender relationship, maybe having a asexual relationship, maybe there are the n number of the sexual orientations, बहुत सारे sexual orientations है। तो उसके आइडेंटिफिकेशंस के बारे में भी बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारे बच्चे को हम सपोर्ट नहीं कर पाते। और अगर हम किसी के ओरिएंटेशंस को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका जो बिहेवियरल रिलेटेड कंपोनेंट्स है, जो एक कम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशंस के बारे में बात कर रहे हैं, उसके सेक्सुअल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि सच एज कि लेस्बियन है, बाइसेक्सुअल है या ट्रांसजेंडर है या कोई भी चीज है, अगर हम इसके बारे में बातचीत करके उस तरह का एम्पावरमेंट, उस तरह के एम्फेसिस का अगर हम ट्रेनिंग दें। और यहाँ पर एक चीज और भी है, बट ये कम यूज होता है जेंडर इक्वालिटी के बारे में, खास करके आईडीडी वाले लोगों में ऐसा कम देखा गया कि जेंडर इक्वालिटी के बारे में बातचीत करना की, बट हमें ओरिएंट करना बहुत जरूरी है अपने स्टूडेंट्स को। तो अगर हम ऐसे कोई प्रोग्राम्स बना सके, ऐसा कोई कंपोनेंट्स डाल सके अपने टीचिंग लर्निंग या थेरापेटिक मोडालिटीज में, तो वो बहुत ही अच्छा इंकरेज करेगा एडोलसेंस को, उसको अंडरस्टैंड करेगा, वो अपने जीवन को बड़े अच्छे से भावनात्मक रूप से समझ सकता है कि उसकी जो लैंगिक समानता है वो कैसे आगे बढ़ सकता है। और एक बेहतर हेल्थ के लिए, एक बेहतर समझदारी के लिए हम लोग ऐसा काम कर सकते हैं, ऐसा कोई प्लान बना सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे मैंने देखा है, even in the Manovikas we have the lot many the curriculums, the lot many components we are providing in the education. So if we can collaborate, if we can interlink with the institutions, with the everyone's even in 3 days, if you all have any kind of informations or you can share your thought process कि आपने अगर कोई ऐसा कुछ किया है या इस तरह का कोई कार्यक्रम आपके जीवन में आपने कहीं किसी भी व्यक्ति के लिए अगर कुछ ऐसा किया है, तो वो आप बता सकते हैं। That will be great. And I expect that all 3 days should be more interactive and it should have more we can say the sharing, कि हम एक दूसरे को बड़े अच्छे से शेयर कर सकें, हम अपनी भावनाओं को बता सकें, so that will be more fruitful. So this much is my thoughts, sir. Gupta sir, thank you very much for opportunity. Thank you very much. सर, मैं एक चीज जो आपने कहा ना, मतलब भारत सरकार के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, यूएनसीआरपी ने क्या किया, अभी 2012 में जो पॉक्सो एक्ट आया है, उस पॉक्सो एक्ट के अंदर चिल्ड्रन विद आईडीडी के लिए, पर्सन विद आईडीडी आइदर मेल और फीमेल, उनके लिए बहुत सारे प्रोविजंस किए गए हैं। दैट मान ली इफ अ चाइल्ड इज नॉट एबल टू कम टू द कोर्ट एंड गिव्स अ स्टेटमेंट, तो अरेंजमेंट्स कैन बी मेड दैट द कोर्ट विल गो टू हिज हाउस, टू द प्लेस, और वहां लिया जाएगा। एंड दे मे नॉट बी आस्क्ड टू रिपीटेड स्टेटमेंट्स इनको नहीं देनी पड़ेगी। एक बार में जो स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया
दैट इज फाइनल. सो लाइक दैट पोक्सो एक्ट के अंदर बहुत सारे प्रोविजंस किए गए हैं, तो वो भी हम लोग अगर टाइम मिलेगा तो we can discuss that. We'll have Madam Stuti Kakkar and she will talk about it. We have. नहीं अभी है नहीं, लेकिन आएंगी वो. आएंगी ना. तो वो अगर हम उनके बारे में भी बात कर सकें, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट दोस, कि हमारे जो आपने जितने भी एक्ट्स की बात करी है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 की बात करी, यूएनसीआरपीडी की बात करी, तो उसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं. वी कैन, इफ वी गेट सम टाइम, वी कैन टॉक इन डिटेल्स about those. So thank you very much for elaborating on 3 days program, and you have very clearly mentioned that what outcome we need. हमको क्या चाहिए इन 3 दिन के अंदर, हमारे पास में क्या होना चाहिए. तो उसके लिए I'll request all the participants, whatever information, whatever things you have been doing and you have, please share on this platform, and so we can document it, and it can become a very good document for anybody and everybody to use it. Now I'll request Mr. Anand. Sir, there is he is not here. Then can we have some point of view from the delegates to Yes. just to frame out कि हम 3 दिन में, और क्योंकि this is the first session, so let us have their point of view if they have something new or something to understand, something to elaborate, so that we can make arrangement with our experts, with our resource persons. Can we, sir, with your permission, sir? Yes, sir. Actually, I may request the participants to come forward and let us know what they want. Number one, कि आपको क्या चाहिए, किस बारे में आप बात करना चाहते हैं, what you are not aware of, कौन सी ऐसी चीजें जिनके बारे में आप नहीं जानना चाहते हैं. क्योंकि when we talk of sexual self advocacy, कि मैं ये कहता हूं कि सबसे पहली बात जो है वो बच्चों को ये आना चाहिए I don't like, और they should be able to say no things they don't like. Number one. Number two, they should know the boundaries. Okay, how far one can go to somebody. अभी एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है यहाँ पर कि हम बचपन में खूब एक दूसरे को, भाई बहन अपने आप सबको हम खूब अच्छी तरह से हग करते हैं. कभी पापा जी की गोदी में बैठ गए, किसी में बैठ गए, मगर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ये चीजें सब दूर होती जाती हैं. वो हगिंग का एक डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है. वी नेवर गो एंड सिट इन द लैप ऑफ अदर्स. वो चाचा जी की गोद में या किसी और की गोद में हम जाकर के नहीं बैठ जाते हैं. तो ये चीजें जो हैं, तो वो ये लिमिटेशंस जो हैं हमारे जो चिल्ड्रन विद आईडीडी हैं, पर्सन विद आईडीडीज हैं, उनको भी मालूम होना चाहिए कि they should know the line, but yes, this is the line, from this I have not to go forward. यहाँ से मेरे को आगे नहीं बढ़ना है. तो मैं I'll make the forum open. आलोक जी से निवेदन करूंगा कि वो सभी को अनम्यूट करने की परमिशन दे दें, और आप में से जो कोई शेयर करना चाहते हैं तो we have 5 minutes with us, तो हम 5 मिनट में वो शेयर कर सकते हैं. Thank you very much. Yes, sir. We have given the unmute permission to all, but we request you one by one you raise your hands and then speak. Yes. Please. Anyone who can start? पार्टिसिपेंट्स में से अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आप प्लीज अपना हैंड रेज करिए, एंड देन यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड से समथिंग. कि आप इन 3 दिनों में जो भी आलोक जी ने बात करी इसके अलावा और कहा चाहते हैं, या आपके पास में कुछ कहने के लिए है तो हम उसके लिए भी मौका दे सकते हैं. Yeah. Please, 1+. Unmute yourself. You raised your hand. Yeah. So this is Prajakta Kande from Nagpur, Maharashtra. पूजा बगाड़े. मेरा एक रेसिडेंशियल सेटअप है फॉर पीपल विद ऑटिज्म. नागपुर में हॉस्टल है. तो मैं इन 3 दिनों में जानना चाहूंगी कि मैं जो हॉस्टल अभी मैंने ओपन किया है उसमें मैं और क्या क्या
अलर्टनेस ला सकती हूँ रिगार्डिंग सेक्सुअल एडवोकेसी और सेफ्टी और इन सारे चीजों में, कि वो केयर गिवर्स क्या क्या प्रिकॉशंस ले, हम बच्चों को क्या क्या सिखा सकते हैं रिगार्डिंग सेक्सुअल एडवोकेसी एंड सेफ्टी। So, क्या नाम बताया मैम आपने? मेरा नाम प्राजक्ता कायंदे सर, पूजा Sorry? के नाम से भी जानते हैं मुझे, पूजा भगाड़े के नाम से भी जानते हैं। आई एम अ स्पेशल एजुकेटर। Very nice. What the organization? It's a Neon Stars Foundation from Nagpur, Very- Maharashtra. Neon very Stars nice. Foundation. I got Thank that. Thanks. Nice. Thank you. good. So, sir, somehow this is good. Yeah. Yeah, and institutions, they are willing to support. Beautiful. That is good. And Yeah, yeah. we have हमने एक यहाँ पर पॉलिसी के बारे में बात नहीं की कि how we can talk about the sexual help policy, or we can say any sexual support policy. I will take that. Don't worry. Yeah, that हमने ये चीज miss किया है. Okay, so Correct. that point Any we can take. Yeah, please, sir. Correct. And second, anyone else who has any kind of thought what to share? ये जो पूजा जी ने कहा वो बहुत अच्छा है। एक्सपेक्टेशंस लोगों की क्या है, पार्टिसिपेंट्स की, वो जरूर बताएं आप में से कोई भी। जैसे पूजा ने बताया, बहुत अच्छा जी, अरुणा जी। अरुणा जी। नमस्कार सर, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। मैं अरुणा सुरावगी, रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट, गुवाहाटी असम से हूँ सर। मैं प्राइवेट प्रैक्टिस लाइक स्लो लर्नर्स, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड। तो उनमें ये दिक्कत पाई गई है सर कि उनको अवेयरनेस कैसे क्रिएट कर। जैसे एक बच्चे के साथ मैं भी सेक्स एजुकेशन का मॉड्यूल स्टार्ट की हूँ, तो समझ नहीं आता और अनईजी फील करता है। तो हाउ टू क्रिएट अवेयरनेस बिटवीन दीज किड्स। और एक बच्चे ने तो सर फैमिली मेंबर पे सेक्सुअली असॉल्ट किया। लाइक उसने कोई वीडियो देख लिया, आजकल वीडियो तो बहुत इजीली एक्सेसिबल है, तो वीडियो को बस किया। सो ही डिड नॉट नो एनी, just imbibe the video. So how to create this awareness before talking about the advocacy, because these kids are not about the sexuality. So we need to create the sex education first. Right. Let me and let us all understand. आपने I think एक बहुत नाजुक मुद्दा उठाया है। पहला तो एक बात है सेक्सुअल एजुकेशन कैसे करें, वो एक बात। बट क्या मैं सही समझा, डिड आई अंडरस्टैंड करेक्टली that one of the persons with disability assaulted somebody else? Is that what you're saying? अरुणा जी? Yes sir. क्या आप ये कह रहे हो कि आपके कोई जो क्लाइंट या रेसिडेंट थे, पर्सन विद डिसेबिलिटी, he assaulted somebody else? Yes. ये कह रहे हो आप? Yes sir. मैं समझ गया था। I just wanted to double check. You're very right. Yes. This is another flip side of what we may do. बच्चा हुआ आपने लाया। And वो बच्चा सर 17 साल का है। नहीं समझ गया मैं। ये 2-3 दिन में बात जरूर होगी, जरूर करेंगे। 17 साल का बच्चा है, उसको कुछ अवेयरनेस नहीं है। Got you. नहीं, बिल्कुल सही है। हाँ जी सर, हमें अवेयरनेस। हाँ जी सर। तो इन बच्चों में अभी हमें, और स्कूल में, स्पेशल स्कूल में भी वर्क की हूँ सर, वहां भी देखा है जैसे बच्चे 13-14 इयर्स के होते हैं तो उनमें हार्मोनल डेवलपमेंट तो होती है, वो फिर जो गर्ल जो रहते हैं ना उनके साथ में, उनपे वो लोग करते हैं अटैक। तो वो डील करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे मुझे लगता है मेरे पास कुछ जवाब है इसके, लेकिन बाकी बात 2-3 दिन में कर लेंगे। बट बहुत नाजुक मुद्दा है। वेरी गुड पॉइंट, वेरी डेलिकेट। मतलब दूसरा पहलू जो है, करेक्ट। नो, दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच सर। So someone else please, anyone else? आप में से और कोई बोल सकते हो? 10 मिनट पहले ब्रेक भी देना। Okay, yes Gupta sir. सर, तो ऑन बिहाफ ऑफ महेश्वरी जी, मैं सर्वप्रथम तो सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत आभार प्रकट करता हूँ, हृदय से उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस टॉपिक को चुना और यहाँ हमारे साथ में शामिल हुए। एंड आई एक्सटेंड माय हार्टफेल्ट थैंक्स टू डॉक्टर निमेश देसाई फॉर
his eye opener, leading from the front and mentoring us what to do and where to do and how to do. तो उसके लिए मैं सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपका जो भी सेशन के बाद में 10 मिनट बाद में आने वाला है, उसमें हम लोगों के आंख और कान आप सभी लोग खुले रखिएगा। आपको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी, बहुत सारी चीजें जानने के लिए मिलेंगी। एंड आई एक्सटेंड माय थैंक्स टू डॉक्टर आलोक and his team for choosing such a beautiful and sensitive topic, जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं या बात करने से शर्माते हैं। आपने ऐसे टॉपिक का चयन किया और उसके लिए 3 दिन का जो आपने वर्कशॉप रखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड क्या आप करने वाले हैं और क्या आपको चाहिए, this also you told us in your deliberation, okay, what we are going to do during the 3 days and what we exactly want to reach, where we want to reach, what we want to achieve after 3 days. So thank you very much. And now we'll have a 10 minutes break after this. And one hand is raised, Nitesh Solanki ji. Can we take this? Nitesh ji, please unmute yourself. Yeah. Nitesh. हाँ जी. Hello, good afternoon sir. I am Nitesh Solanki from Gujarat. जी sir. सर अभी एक मैम ने जो बात की है, 17 साल का बच्चा था जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटी था और उसने सेक्सुअल असॉल्ट किया है। तो अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर ऐसे जो कि 18 साल के बच्चे हैं या उससे ऊपर वाले बच्चे जो हैं, तो वैसे कहीं ना कहीं वो लॉ को ब्रेक कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या सिक्योरिटी प्रोविजन रहेगा? वो पहले भी बात कर लेंगे नीतीश भाई। हाँ जी, कर लेंगे, श्योर। लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ व्हाट अरुणा जी हैज ब्रॉट अप, नो, आई अंडरस्टैंड। या पर्टिकुलरली दोस हु आर एडल्ट। हाँ, वो जो कंट्रोवर्सी चल रही है ना एज लिमिट की भी। हाँ जी, 16, 18, यू नो 18 या हाँ जे में हाँ जी, करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।